بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کے سردار 600 پروں والے ہیبت ناک فرشتے، جس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں نئے زیادہ فرشتے پیدا کرتے ہیں، جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کے معلم اور ان پر وحی لانے والے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں حضرت جبریل الامین ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کی تاریخ اور کچھ ایسے حقائق آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں، ملائکوں، روز آخرت، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ آپ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جا کر کیوں رک گئے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کلمات بولے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، جو تمام گناہوں سے پاک ہیں، اور ان کی پیدائش حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو آسمان پر مختلف کاموں کے لیے مامور کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئی ذمہ داریاں اور فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ کا پیغام اپنے نبیوں، رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ آسمان پر کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، لیکن جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کا نام حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق کیا تو انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ بہت لمبے عرصے تک چلا۔ آپ کے 600 پر ہیں۔ تمام فرشتوں کے 12 قبائل ہیں، اور ہر قبائل میں فرشتوں کی تعداد آسمان پر ستاروں اور زمین پر ریت کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں، جس کے گرد ہمیشہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، اور ہر پردے کے گرد فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے جتنی دریا میں قطرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قرب حضرت جبرائیل الامین کو حاصل ہے۔ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ جتنے بھی ملائکہ کے نام کے ساتھ لفظ ایل آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے۔ حضرت جبرائیل کا نام قرآن مجید میں 3 بار آیا ہے۔ روح القدوس اور روح الامین بھی آپ کے مشہور ناموں میں سے ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی تو آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور 30 سال تک اسی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی کا انتظام بھی نہایت ہی خوبصورت کیا ہے۔ جنت میں ایک خوبصورت نہر ہے جس سے آپ غسل کرتے ہیں، اور جب غسل کر کے باہر تشریف لاتے ہیں تو جتنے قطرے آپ کے پروں پر موجود ہوتے ہیں، جب آپ پر جھاڑتے ہیں تو ان سے اسی تعداد میں نئے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے 600 پر ہیں، اور اگر آپ ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے جھک جائیں۔ آپ پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ حضرت آدم پر 12 بار وحی لے کر نازل ہوئے، حضرت ادریس پر
4 बार, हज़रत इब्राहीम पर 42 बार, हज़रत मूसा पर 400 बार, हज़रत ईसा पर 1300 बार और ख़त्मुल नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 बार वही लेकर नाजिल हुए। आप तमाम नबियों के उस्ताद हैं। जब हज़रत नूह को अज़ीमुल शान तूफ़ान से पहले कश्ती बनानी थी, आपने सबसे पहले हज़रत नूह को कश्ती बनाना सिखाया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में डालने की कोशिश की तो आपने अपने परों से उस आग को गुलजार बना दिया। हज़रत यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में फेंका तो आप आसमान से तेज़ रफ्तारी के साथ कुएं में दाखिल हुए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में लपेट लिया और इनको हौसला दिया। और जब आप हज़रत लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और उनकी नाफरमान कौम ने उनके घर का गिरोह कर लिया तो आपने हज़रत लूत की कौम के चेहरे पर अपने पर का एक किनारा मारकर उन्हें हमेशा के लिए अंधा कर दिया और 5 शहरों पर मौजूद बस्ती को अपने परों से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और तब निस्तो नाबूद कर दिया। आप हज़रत ज़करिया के पास उनकी औलाद की बशारत लेकर गए थे और हज़रत ईसा की पैदाइश आपके कलमाए कुन से हुई है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा वही लेकर आते और उनको इंसानी रूप में मिलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद थी और वो गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। तब आप उन पर नाजिल हुए और आपने फरमाया, ऐ प्यारे नबी आप पढ़ें। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आपने अपने परों से उनको दबाया और दोबारा फरमाया कि आप पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया कि मैं नहीं पढ़ सकता और तीसरी बार आपने उनको और ज़ोर से अपने परों में दबाया और छोड़ दिया और कहा कि पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता। उसके बाद आप अर्श पर वापस चले गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हो गया और वो गारे हिरा से अपने घर तशरीफ़ ले आए और आते ही उन्होंने हज़रत खतीजा से फरमाया, ऐ बीबी खतीजा मुझे लिहाफ उड़ा दें और आप थोड़ी देर के लिए लेट गए और जब आपका कपकपी और डर ख़त्म हुआ तो आपने तमाम वाक़या हज़रत खतीजा के गोशो गुज़र किया और हज़रत खतीजा आपको अपने चचाज़ाद भाई गरका बिन नफ़त के पास ले गई, क्योंकि वो पूरे अरब में एक ऐसे इंसान थे जो पढ़ना लिखना जानते थे और जिन्होंने अंजील का अरबी में तर्जमा भी किया है। आप जब उनके पास उनके दरवाज़े पर पहुंची तो आपने दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, प्यारे भैया दरवाज़ा खोलिए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो काफ़ी बूढ़े और ज़ईफ़ थे और आँखों से नबीना हो चुके थे। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। हज़रत खतीजा ने अपने भाई से सारा वाक़ा गोशो गुज़र किया और उन्होंने फरमाया कि वो कोई और नहीं अल्लाह ताला के महबूब फरिश्ते जिब्रीलुल अमीन हैं। काश आपकी नबूवत के वक्त मैं आपके साथ होता और अहले मक्का वाले जब आपको मक्का से निकालते तो मैं मौजूद होता। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मक्का वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे? तो आपने फरमाया कि जी हाँ,
जो भी इल्म नबूवत का दावा करता है उसकी कौम उसके खिलाफ हो जाती है और उसको वहाँ से निकाल देती है। और जो आप वाक़या बता रहे हैं वो कोई और नहीं अल्लाह के महबूब फरिश्ते और मुअल्लिम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको जिस्म और नूर के साथ अल्लाह ताला ने दिमाग भी अता किया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के पास इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी असली हालत में देखा था। हज़रत जिब्राईल अमीन हर दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खूबसूरत नौजवान दरिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ़ लाते थे और आपसे बातें और आपको अल्लाह ताला का पैगाम बताते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया, ए जिब्राईल, मैं तुम्हें तुम्हारी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि आप बकीउल गर्क में 13 तारीख को तशरीफ़ ले आए और आप उस दिन वहाँ पहुँचे और आपने देखा कि हज़रत जिब्राईल ने अपने दोनों परों को फैलाया है जिससे आसमान तक नज़र नहीं आ रहा और आप अल्लाह ताला की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते और उनको रुश्द व हदायत का काम सिखाते। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा, ए जिब्राईल, आपकी कितनी उम्र है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के पर्दों में से एक पर्दा जो बहुत ही खूबसूरत है, उसके चौथे हिस्से पर एक सितारा जो हमेशा जगमगाता था, जो 70 साल में एक मरतबा नज़र आता है। मैंने उस सितारे को 72 बार देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, वो सितारा मैं हूँ। लेकिन मुख्तलिफ रवायात में इसकी नफ़ी की गई है और इस बात में कोई हक़ाइक़ शामिल नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात मिराज पर जा रहे थे तो हज़रत जिब्राईल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और सिदरतुल मुंतहा मकाम पर जाकर रुक गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह, इससे आगे मैं अगर एक उंगली के बराबर भी बढ़ूँ तो मैं जलकर राख हो जाऊँ। आपका मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ नाम है, जैसे अंजील में आपको गरबईल भी कहते हैं। आप अल्लाह ताला के महबूब फरिश्ते और नबियों पर वही लाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म के साथ दिमाग भी अता किया है और आप अल्लाह ताला के सबसे पहले पैदा किए गए फरिश्तों में से एक हैं। उम्मीद करती हूँ हज़रत जिब्राईल की तारीख़ जानकर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं एक खूबसूरत अगली वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।